जैसे यू वर वेरी यंग जब आपको लॉन्च किया गया था फिल्मों में, बच्चों को लेकर प्लान करते हो क्या फ्यूचर होगा या छोड़ रखा है बिल्कुल? कभी करण जौहर का फोन है कि हेलो बच्चे रेडी है? वो एक दो फोन आए हैं। जैसे यू वर वेरी यंग जब आपको लॉन्च किया गया था फिल्मों में, बच्चों को लेकर प्लान करते हो, प्रेशर लेते हो इस चीज का कि क्या फ्यूचर होगा या छोड़ रखा है बिल्कुल? नहीं, मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया है। सोचा नहीं? मैंने सोचा है जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे का जो होता है, जो हर इंसान का, मुझे कहता है, कहूँगी कि हर इंसान की जो लाइफ होती है और जो चॉइसेस होते हैं वो उनके खुद के ही होने चाहिए. दे शुड बी देयर ओन चॉइसेस. सो आई फील कि एज अ पेरेंट मैंने इतनी पेरेंटिंग कर ली है. नाउ माई सन इज 15 years old, my daughter is 22 years old. So I have done enough of parenting in that time to hopefully teach them how to make good choices in life. And I will have to, जैसे you have to let the bird fly off the tree on his own. How to learn how to fly? How will that bird learn how to fly if he never jumps off the tree? बट एक होता है ना, जैसे किसी फील्ड में हमने एक्सेल किया है तो हमें लगता है इस फील्ड में हम ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, या दोस्तों का फोन है, कभी करण जौहर का फोन है कि हेलो बच्चे रेडी है? अब वो एक दो फोन आए हैं. लेकिन आई थिंक currently though I think my daughter is definitely not coming into movies, and if she wants to do whatever she wants to do, I think she will tell us and we are behind her 100% whatever she wants to do. Okay. आप 18 साल के थे जब बाजीगर आई थी? I think so. 18 साल के थे. बाजीगर आई थिंक बहुत कल्ट मूवी अपने टाइम की थी. बहुत सारे अवार्ड्स, चाहे वो अनु मलिक हो, कुमार सानू हो, शाहरुख हो, आप हो. बाजीगर ने क्या बदला काजोल की लाइफ में? बाजीगर के बाद I think the work started up a lot more. काम जो है वो बहुत ही it went into a different went into a more frequent zone. Suddenly the work suddenly became a lot. तो उसके बाद हाँ, मैंने 3-4 पिक्चरें साइन कर ली and whatever together. Though of course I was, उस वक्त भी मैं मम्मी को I will not do more than one film at a time, mama. I will not do 2 shifts. And my mother was also like, no baby, you must not do 2 shifts. तो वो सब था. But yeah, it was like a kind of it did kind of catapult me into stardom maybe. But लेकिन उस वक्त social media नहीं था. तो उस वक्त you never had this you never had a thrust on your face, you never had it कि अरे आप स्टार बन गए, oh my god, वो नहीं था. तो आई थिंक आप फिर भी उसके बाद भी मैं काम पे जा रही थी. इट वाज नॉर्मल, इट वाज वेरी आई वाजंट एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज्ड ऑन द रोड्स इवन देन. बाजीगर के बाद आई थिंक इट केम अबाउट आफ्टर more after DDLJ. yes, not after DDLJ, a little earlier than that maybe, but it took a little time. Like I could still go and walk around. बाजीगर के बाद भी I would walk up and down Breach Candy because मेरी किताब की दुकान वहाँ पे Kemp's Corner पे थी. तो मैं हमेशा घर से I used to walk to the shop and get my books and come back. So I was still doing all that quite comfortably without like I said, social media was not there. So it was a very it was a calmer time. थोड़ी सी शांति थी. And you could be whoever you wanted to be without the intrusion of anybody's cell phone camera in your face. तो जैसे 90s में भी आप रेलेवेंट थे, आज भी आप रेलेवेंट हो, आज भी आपकी ट्रायल आ रही है. क्या फर्क हो गया उस टाइम की फिल्म से आज की फिल्म में, और एज एन एक्ट्रेस अब क्या अलग हो गया है? I think as an actor, the one thing that has changed, touch wood, is the fact that it's a lovely time for actors right now. I think at that time it was only stars. उस वक्त में सिर्फ स्टार्स हुआ करते थे. उसमें अगर पिक्चरें भी थी तो इतनी पिक्चरों का जो है, इट वाज डिपेंडेंट ऑन द स्टार, ऑन whether that star is well known or not well known or whatever. But now I think it is a time for actors. So it is I would say that because of the social media, your longevity has increased. You are still relevant in a lot more ways. And nowadays I think an actor is not simply an actor anymore. सिर्फ एक एक्टर बन के नहीं रह गए हो आप एक्टिंग भी कर सकते हो, आप डेंटिस्ट्री भी कर सकते हो, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हो, राइटर भी बन सकते हो. मतलब there are 100 things open to you, and that is one of the reasons for relevance, and that is one of the reasons for longevity as well. बट ये प्रेशर नहीं देता कि but I will say that the stardom is less.
I will say that. लाइमलाइट इज अब वैसे स्टार्स आपको लगता है आएंगे, जैसे आप लोग कह रहा था डीडीएलजे था, या शाहरुख सर, सलमान आमिर, या उससे पहले अमिताभ सर, या हीरोइन में आप, माधुरी जी, श्रीदेवी जी, आपको लगता है उतने लंबे ड्यूरेशन तक अब स्टार्स रहेंगे? बिकॉज कई बार लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपोज हो गया, सब कुछ पता है लोगों को, उतना एक्साइटमेंट लोगों में भी खत्म हो गई. वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि these, like I said, it is the time of actors. And it's a wonderful time, actually speaking. It's a wonderful time क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि अभी एक एक्टर सब कुछ बन सकता है. अभी it's your longevity in, it's not just about acting anymore. So if you say that this actor will be there till like for the next 20 years or 30 years, you never know. They just might. क्योंकि वो एक पिक्चर भी करेंगे हर 2 साल में, तो भी अगले 20 साल के लिए कुछ ना कुछ काम तो मिलता रहेगा उनको. बट वो जो स्टारडम सुनते थे कि Stardom राजेश खन्ना साहब पे गाड़ियों पे आके लड़कियां किस कर लेती थी. नहीं, I don't think that anybody is going to jump over anybody's car or cut their wrists and all. वो मुझे नहीं लगता है होने वाला है. But like I said, change is change and change will happen. अगर हम चाहे या ना चाहें, वो change तो हो चुका है ऑलरेडी और होते रहेगा. अभी तो AI भी आ गए हैं, तो AI के स्टार्स भी आ गए हैं आपके साथ compete करने के लिए. प्रेशर होता है कि मैंने कभी खुशी कभी गम की है, मैंने डीडीएलजे की है, मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की है, और अब भी नए बच्चों से कंपटीशन करना है, क्योंकि आप एक लेगेसी लेकर आते हो, सो आई एम श्योर एक्सपेक्टेशन आती होगी लोगों की कि ये काजोल है. मैंने कभी किसी के साथ compete किया ही नहीं है. मैंने compete किया ही नहीं. मैंने अपने आप को, मैंने सबको बोल दिया था आप लोग सब नंबर 1 हो. मुझे नंबर के गेम में घुसना ही नहीं है. मुझे किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया है और मैंने करना भी नहीं है और किया भी नहीं है. मुझे लगता है कि हमेशा मेरी जो दौड़ रही है वो खुद के साथ ही रही है. मेरी जो रेस है उसमें मैं ही हूँ, मैं अकेली हूँ. मेरे लास्ट परफॉर्मेंस के साथ, मेरे अगले परफॉर्मेंस के साथ मैं ही अकेली मिल्खा सिंह की तरह भाग रही हूँ, अकेली. तो मैंने कभी, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो आई एम नॉट कम्पीटिंग विथ एनीबडी. And I don't want to compete with anybody because I really feel like I'm my harshest critic. When I see my own performance in a film, I have 20 more things to say than anybody else will tell me. तो कौन सी फिल्म थी आपकी जिसमें आपको देख के लगा मैंने बहुत बुरा काम किया? बुरा काम तो Yeah, you felt कि I could do better. I feel that about all my performances. I feel like all my performances I look at. मेरी माँ निकली थी recently, और मेरी माँ नहीं निकली थी, मेरी पिक्चर माँ निकली थी recently. बट मेरी पिक्चर माँ रिसेंटली निकली थी, सरजमीन निकली थी. तो मुझे हर जगह लगता है, मैं देखती हूँ तो बोलते नहीं ये शॉट आई शुड हैव डन बेटर, नो आई कुड हैव ट्वीक्ड इट, आई कुड हैव सेड दिस डायलॉग डिफरेंटली. वो लेकिन हर परफॉर्मेंस में होता है. चलो उसको रिवर्स करते हैं. कौन सा ऐसा सीन या रोल था जिसमें आपको लगा वेल डन? अभी मुझे लगता है कि जब मैं डीडीएलजे देखती हूँ या कुछ होता है देखते हो, तो अब मुझे लगता है कि हाँ वेल डन. उस वक्त तो मुझे लगा था कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. मतलब 4-5 खामियां निकाली थी उसमें से, तो बोला नहीं ये इसमें गलत है, उसमें गलत है. बट नाउ व्हेन आई सी इट 20 years later, 30 years later, now I'm like yeah, she did whatever, good job. 30 साल बाद भी अभी भी डीडीएलजे के बारे में सब बात करते हैं. अभी मैंने सैयारा के लिए मोहित सूरी का पॉडकास्ट किया था, हम वाईआरएफ में वही बात कर रहे थे कि डीडीएलजे क्या खास था डीडीएलजे में, और आपका फेवरेट सीन कौन सा डीडीएलजे का? इफ यू हैव टू मेंशन वन, एक सीन डीडीएलजे का सबसे पहले. ओनली वन सीन, तभी तो मजा आएगा. तो वैसे तो पूरी पिक्चर अच्छी है. पूरी पिक्चर अच्छी है. आई थिंक द वन सीन दैट आई एब्सोल्युटली लव, द वन मोमेंट दैट I love in the film is it's a very small moment. I think पता नहीं तुमको याद भी होगा कि नहीं होगा. हम 30 साल से लोग लगातार देख. I think the part where she looks at Shahrukh and she says, you know, train station पे, तो मेरी शादी पे आओगे ना? And he turns around and he says no. I was like, I loved that moment in the film. I thought that was just such a surprise. It was such an unexpected turn of events. और फिर वहाँ से वो मतलब it goes into the song and I loved that song. इसके बाद हो गया तुझको प्यार से. हाँ, देखा ना तूने मुड़ के भी पीछे. You remember the film better than me. मैं वही सोच रही थी कौन सा गाना था. कुछ देर तक मैं रुका था. हाँ, ब्यूटीफुल लाइन आई रिमेम्बर, जब दिल ने तुझको रोकना चाहा दूर तू जा चुका था. बिल्कुल. So that's I think one of the nicest moments in the film. And your favorite song in that movie?
My favorite song in the film. I liked all the music actually. फिर इसी तो पूछ रहा हूँ ना मैं सब. नहीं, ऐसा फेवरेट नहीं हो सकता एक ना. तो एक एल्बम बोल दो, मेरा फेवरेट है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो बोल दोगे आप. उसमें भी अगर आपको प्ले करना हो, लाइक चलो सारे 6-7 गाने पसंद है, पहला गाना कौन I सा प्ले think करोगे? मेहंदी लगा के रखना. ओके. I love मेहंदी लगा के रखना. I thought that was one of those songs that's eternal. आप कहीं पे भी सुन लो वो गाना, आज भी वो रीमिक्स भी कर लो, वो खराब नहीं हो सकता है. You know, it's one of those things. It's one of those, like how every girl has like one black dress in her outfit, in her cupboard, which is like perfect for her. I feel that song is perfect. कहाँ पे भी बजा लो, कहीं से भी बजा लो, slow बजा लो, acoustic बजा लो, remix कर लो उसको, it always works. नाइस. मुझे लगा था शायद आप मेरे ख्वाबों या जरा सा झूम लो. Like I said, the whole album is fantastic. I love all the songs, but you have to be in a mood to hear all of them. आपका एक मूड होना चाहिए सुनने के लिए, मेरे ख्वाबों में या जरा सा झूम लूं में, वट एवर. मेहंदी लगा के रखना जैसे ऑन होता है, यू फील लाइक डांसिंग. एंड या सो लता मंगेशकर प्लस काजोल, डू यू थिंक इट वाज अ डेडली कॉम्बिनेशन? आई मीन लता जी नहीं है, हम सब उन्हें मिस करते हैं, बट जिन जिन गानों पे उन्होंने परफॉर्म किया आपके लिए, चाहे बाकी फिल्में हो, कोई भी फिल्म जहां पर आप दोनों साथ में आए, डेडली कॉम्बिनेशन. शी इज नॉट संग अ लॉट फॉर मी. बहुत ज्यादा गाने नहीं किए उन्होंने मेरे लिए, तो आई थिंक बहुत कम गाने. वाईआरएफ उन्होंने बहुत किए हैं आपके लिए. हाँ, मेरे लिए बहुत कम गाने किए हैं एक्चुअली. एंड सो यस, I think her combination with everybody was fantastic. I mean, she was not called the Nightingale for nothing. तो मुझे लगता है कि मैंने she was an amazing she's legend, जिसे कहते हैं a true legend. जो फेवरेट लता जी का गाना? I don't have a favorite. I love her voice regardless of the लता. एक कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो जब सुनाई देते हैं तो आपको वो गाने ज़रूर सुनाई देते हैं, लेकिन उसके साथ वो इंसान भी दिखाई देता है. और आई थिंक लता जी was definitely one of those people and one of those people that you just love her, you see her, in all her songs. It's like a trademark signature. So her, Kishore Kumar, I love both of them. कुछ होता है. उसमें आपका फेवरेट सीन कौन सा था? एंड कुछ होता है, सवाल मुझे किसी ने भेजा था कि अगर काजोल को वो फिल्म डायरेक्ट करनी होती, अगर या राइट करनी होती, अगर राइट करनी होती, तो क्या वो आखिर में शाहरुख से शादी करती? जिस तरह से छोड़ के गया था. आई थिंक उस वक्त के लिए आई थिंक कुछ होता वाज परफेक्ट. सी लोग कितनी गहराई में सोचते हैं. ये मेरे को रिसेंटली दिया गया. बिल्कुल. और आज के जमाने में जैसे दे से दैट ही वाज द रेड फ्लैग मैन. हां, उसको सिर्फ आज के जमाने में आई वुड हैव, इफ आई हैड टू मेक दैट फिल्म, आई वुड हैव मेड दैट फिल्म विद हिम नॉट लविंग द वुमन इन द साड़ी एंड लविंग हर ओनली वंस शी वॉर workout clothes and started playing basketball with him. So I think maybe that would be the change in the entire scripting. लेकिन मुझे लगता है कि कुछ होता है में there were too many nice scenes also. There were lovely scenes. I loved all the I loved the fight where you're a cheetah. I love that scene. I love कितनी सारे scenes हैं उसमें जो मुझे बहुत पसंद आए हैं. But I think again a scene that I personally like and I loved doing because we had no idea कि हम क्या कर रहे थे उस वक्त. हमें कुछ पता नहीं था. हमें करण ने बोल दिया था कि कैमरा ऑन होने वाला है, जो करना है कर लो तुम लोग दोनों. तो उस वक्त आई थिंक हम दोनों को पता नहीं था कि हम क्या करने वाले थे. सो देयर इज दिस लवली अनसर्टेनिटी अबाउट इट. आई मीन हमने कभी कुछ प्लान नहीं किया कि हम हाथ किधर जाएगा या एंड इट वाज वन ऑफ दोस सीन्स जहाँ पे देयर वर नो वर्ड्स, सो डायलॉग्स नहीं लिखे गए थे हमारे लिए. आई थिंक द सीन वेयर शाहरुख एंड अंजलि मीट, I mean, Rahul and Anjali meet on the at the camp, summer camp. Okay, yeah. So I think that was just it was just a moment. It became a scene. कुछ बताया नहीं गया था कि क्या करना है, क्या करना चाहिए. So it was just something that just happened. So I think that's one of the scenes that I liked probably doing the most. दो मैं सलमान खान फैन, तो मेरा वो आपकी मॉम के साथ डांस करने वाला सीन था. सलमान जब वो एक गाना स्लो होता है, she was almost to cry and then सलमान आता है डांस करने ले आता है. I found it beautiful. It's lovely. कि दुल्हन की मम्मी के साथ वो डांस कर रहे हैं. Absolutely, green flag man. But you left green flag for red flag. According to the script. But अभी मैं आपकी जो ट्रायल देख रहा था, ट्रायल में आप रेड फ्लैग को लेके हो स्ट्रॉन्ग स्टैंड.
ट्रायल को लेके आई थिंक ट्रायल इज अबाउट choices. It's not a girl's choice, it's a woman's choice. And a woman's choice is never just about herself. एक औरत की जो चॉइस होती है जिंदगी में, आप हमेशा उसको सिर्फ उसके नज़रिए से नहीं देखेगी. वो मतलब सब चीज़ों को मिला के जो है उसको डिसीजन लेना है. अपने बच्चों के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है कि अगर सोसाइटी मेरी तरफ जो भी बोले लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए उसमें. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसकी जॉब की सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, विच प्लेज अनदर वेरी वेरी बिग पार्ट इन एवरी वुमन्स लाइफ. सो आई थिंक वेयर नोयोनिका इज कंसर्न्ड, उसका जो किरदार है, it's not a simple choice. और सीजन 2 में भी, सीजन 1 में भी एक बहुत दिखाते हैं कि ये डिसीजन लेने में भी सॉरी बहुत सारी चीजें हैं जो उसने सोच समझ के मतलब समेटा है और कहा है कि ठीक है, अभी मुझे ये ऐसा कदम लेना चाहिए. और सीजन 2 में it is again completely, you're going in a certain direction. So I think season 2 is going to be interesting to see what the direction is, why she takes that step, और जो भी आपके सवाल थे पहले सीजन में वो कैसे जवाब देगी सीजन 2 में. अभी एक फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो भी आई थी और अभी ट्रायल भी देख रहा था मैं.